اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسم سمجھ لینے کے بعد، جملہ اسمیہ بنانے کے بعد ہم نے مرکبات میں قدم رکھا۔ پھر ہم نے 3 مرکبات سیکھے۔ مرکب توصیفی، ایسا مرکب جس میں صرف اسماء استعمال ہو اور ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، ایک اسم ہو اور دوسری اس کی صفت۔ پھر ہم نے دیکھا مرکب اشاری، یعنی جس میں ایک اسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا مرکب اضافی، ایک ایسا مرکب جس میں 2 اسماء کا آپس میں تعلق جوڑا جائے، اور یہ مرکبات ناقصہ کہلاتے ہیں۔ ناقصہ اس لیے کیونکہ یہ اپنی بات مکمل نہیں کہتے۔ آج ہم مرکب اضافی میں ہی ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مرکب اضافی کی مثالیں ہم قرآن سے بھی کچھ دیکھ آئیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور سرگرمیاں بھی کی تھیں۔ مثلا ہم نے عربی کی، اردو سے عربی، عربی سے اردو، اور پھر مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال، یا پھر ہم نے تقابل کیا تھا ضمائر کا، یعنی اسماء کو ہٹا کر ضمائر اس میں استعمال کیا، یعنی مختلف ہم ایکٹیویٹیز کر آئے ہیں مرکب اضافی کے حوالے سے۔ آج ہم مرکب اضافی میں ایک اسٹیپ اور آگے بڑھیں گے، ایک قدم، اور اس اسٹیپ کا نام ہے پیچیدہ مرکب اضافی۔ نوٹ کریں، آج جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے پیچیدہ مرکب اضافی۔ اب یہاں پر آپ کو نام سے ہی پیچیدگی محسوس ہو رہی ہوگی کہ کیا مطلب ہے پیچیدہ مرکب اضافی کا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اب آگے چلیں۔ دیکھیں، ایک ہم نے آسان مرکب اضافی دیکھا، یعنی اس میں 2 اقسام ہیں مرکب اضافی کی، ایک سادہ مرکب اضافی اور دوسرا پیچیدہ مرکب اضافی۔ پہلے ہم سادے کی مثال دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہم نے پڑھا بھی ہوا ہے تو ہمارے لیے آسان ہے۔ جیسے زید کی کتاب، اوکے، زید کی کتاب، یہ کیا ہے؟ آسان، یہ سادہ مرکب اضافی ہے۔ ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کس طرح کیا؟ زید کو اس طرف کیا اور کتاب کو اس طرف کیا۔ پھر ہم نے اس کے پارٹس بھی دیکھے کہ زید کتاب کی جو نسبت ہے وہ زید کی طرف دی جا رہی ہے، یعنی کتاب کس کا ہے؟ زید کا ہے، تو اس لیے یہ کتاب ہو گیا مضاف اور زید ہو گیا مضاف الیہ، یعنی جس کی طرف نسبت دی جائے۔ صحیح ہے؟ تو پہلے ہم نے مضاف کو دیکھا، اور مضاف کے جو 2 قواعد تھے، ایک اس پر الف لام نہیں آنا اور دوسرا اس پر تنوین بھی نہیں آنی۔ تو کتابو، الکتابو نہیں، یا کتابن بھی نہیں، بس کتابو، اور پھر زید کو ہم نے حالت جر میں رکھنا ہے۔ زید پہ ہم الف لام لگا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم نے مضاف پر الف لام نہیں لگانا، لیکن زید خود ہی معرفہ ہے، خود ہی خاص ہے، اس لیے ہم اس پر الف لام نہیں لگائیں گے۔ کتاب زیدن، زید کی کتاب۔ اب یہاں پر آئیں، یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، اس کو دیکھیں، زید کی کتاب کا ورق، صحیح، زید کی کتاب کا ورق۔ آپ دیکھیں یہ پیچیدہ ہے، یعنی اس میں 2 مضاف یا 2 مضاف الیہ استعمال ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر کی ایک مرتبہ اور کا دوسری مرتبہ، یہاں پر کی صرف ایک مرتبہ آیا تھا۔ تو اب اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا جائے؟ یہ آپ کو قرآن پاک میں بھی ملے گا، مثلا جیسے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ ابو لہب یہ خود ایک مرکب اضافی ہی ہے، ہم نے ابھی نہیں سیکھا، لیکن یہ بھی پیچیدہ مرکب اضافی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو اور بھی ملیں گے، جیسے کہ بدلے کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک، صرف فاتحہ میں ہی ہم پڑھتے ہیں بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ، تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے۔ یا اس کے علاوہ جیسے حدیث میں آتا ہے آدم کی اولاد کے قدم، آدم کی اولاد کے قدم، تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی کہلاتا ہے، یعنی جس میں 2 مرتبہ یا 2 سے زیادہ مرتبہ کی یا کا آئے،
ये 2 मरतबा आया है ना, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम 2 पर ही काम करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो ज़ैद की किताब और किताब का वरक, यानी ज़ैद की किताब का वरक। पहले हम इसको थोड़ा खोल कर लिखते हैं, जैसे ज़ैद की किताब, ये हमने इसे खोला, फिर किताब का वरक। समझ में आ रही बात हमने क्या किया? यानी ये 2 मुज़ाफ या 2 मुज़ाफ इलैह से बना पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। ये क्या है? ज़ैद की किताब और फिर किताब का वरक। तो हमने ऐसे कर दिया, ज़ैद की किताब और किताब का वरक। पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इन दोनों को, उसके बाद हम इसको करने की कोशिश करेंगे, यानी कि स्टेप वाइज चल रहे हैं। तो ज़ैद की किताब में पहले किताब आएगा और किताब की अरबी आपको पता है किताब ही होगी, इस पर अलिफ लाम या तनवीन नहीं आएगा। और ज़ैदिन बिल्कुल वैसे ही जैसे ये हमने किया किताब ज़ैदिन। अब किताब का वरक, वरक को अरबी में वरक ही कहा जाता है, वरकू, वरकू, और फिर अल किताब भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम किसी खास किताब की बात करें जो ज़ैद के पास है। तो यहाँ पर किताबी को हम हालत जर में रखेंगे, क्योंकि इस पर अलिफ लाम हुआ है तो ये तनवीन नहीं लेगा। ज़ैदिन ने तनवीन इसलिए ली है क्योंकि इस पर अलिफ लाम मौजूद नहीं है, और इसने तनवीन इसलिए नहीं ली क्योंकि मुज़ाफ पर तनवीन नहीं आती। ये रूल्स आपने बाकायदा अपने जहन में ताज़ा ताज़ा करते चले जाने हैं, वरना आपको आगे चलकर मुश्किल होगी और आपको लगेगा अरबी मुश्किल है। अरबी मुश्किल नहीं है, बस उसको जहन में रखना थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन अगर बार बार आप रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वरकुल किताबी, किताब का वरक, किताब ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। ठीक है, तो यानी हमें क्या पता चला? किताब मुज़ाफ है और ज़ैद मुज़ाफ इलैहि है। सही है, वरक मुज़ाफ है और किताब मुज़ाफ इलैहि है। कितने मुज़ाफ और कितने मुज़ाफ इलैहि हुए, थोड़ा नोट करें। कितने मुज़ाफ और कितने मुज़ाफ इलैहि हुए? मुज़ाफ एक मुज़ाफ और ये दूसरा मुज़ाफ, मुज़ाफ इलैहि एक मुज़ाफ इलैहि और ये दूसरा मुज़ाफ इलैहि। सही है, तो अब हम इसको एक ये तो हमने अलग अलग करके ट्रांसलेट किया है ना, किताब ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे किताब ज़ैदिन वरकुल किताबी, ज़ैद की किताब का वरक, ये नहीं कहेंगे। हमने तर्जुमा भी अल्फाज के हिसाब से करना है। किताब ज़ैदिन यानी ज़ैद की किताब, वरकुल किताबी यानी किताब का वरक। ये 2 मुरक्कब इजाफी है, ये एक ही है, ये पेचीदा है मगर एक ही है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब आए, हमने ज़ैद को इस तरफ करना है क्योंकि ये मुज़ाफ इलैहि है, यानी ये जो वरक है इसका ताल्लुक ज़ैद से कायम किया जा रहा है, इसकी निस्बत ज़ैद की तरफ दी जा रही है, तो ये मुज़ाफ इलैहि है। और वरक को हम इस तरफ करेंगे क्योंकि ये मुज़ाफ है, यानी इसका ताल्लुक ज़ैद से जोड़ा जा रहा है। अब रहा किताब, आपको पता है कि की और का, इनके लिए कोई भी अरबी का लफ्ज़ नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर भी आप देखें किताबु ज़ैदिन, ज़ैद और किताब आया है, की नहीं आया, तो इसकी तो वैसे ही अरबी नहीं होगी। तो हमें इन तीनों को फोकस करना है और इस तरह इनकी अरबी करनी है कि इसमें की और का मफ़हूम आ जाए। तो किताब क्या है? किताब मुज़ाफ है या मुज़ाफ इलैहि है? अगर किताब का ताल्लुक ज़ैद से कायम किया जाए तो ज़ैद के लिए किताब मुज़ाफ है, ज़ैद के लिए किताब, यानी किसकी किताब है? किसकी किताब है? ज़ैद की किताब है ना, तो ज़ैद के लिए किताब क्या है? मुज़ाफ है। और वरक के लिए किताब क्या है? यानी वरक का ताल्लुक अगर किताब से जोड़ा जाए तो किताब को किससे निस्बत दी जा रही है ना, तो ये वरक के लिए मुज़ाफ इलैहि भी है। यानी ये जो बीच वाला लफ्ज होगा ना, की का के में, इस ये दोनों से ताल्लुक रखेगा। यानी देखें, यूँ समझे, थोड़ा आसानी से समझे, किताब को ज़ैद की तरफ भी ले जाएं और किताब को वरक की तरफ भी ले जाएं। यानी कि यहाँ पर किताब का ताल्लुक दोनों से है, किताब, वरक का ताल्लुक ज़ैद से नहीं है, ज़ैद की किताब है, वरक किताब का है। ठीक है, दोबारा, ज़ैद की किताब, किताब का वरक। सही है, यानी ज़ैद की किताब का वरक। तो किताब ज़ैद के लिए मुज़ाफ है और किताब वरक के लिए मुज़ाफ इलैहि है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर मुज़ाफ के रूल्स लगाने हैं
यहाँ पर मुजाफ और मुजाफ इलैहि दोनों के रूल्स और यहाँ पर सिर्फ मुजाफ इलैहि के रूल्स। अब तर्जमा करते हैं। पहले हमने क्या रखना है, देखें तीर, ये आखिर वाला यहाँ पर रखना है मुजाफ, तो मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा और एराब हल्का होगा, तो ये हो जाएगा वरकू, वरकू, ठीक है। फिर किताब, इस पर अलिफ लाम भी नहीं आएगा क्योंकि ये मुजाफ है। इस पर तनवीन भी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये मुजाफ है। इस पर ये हालत जर में होगा, क्यों हालत जर में होगा, क्योंकि मुजाफ इलैहि है। मुजाफ इलैहि हमेशा हालत जर में होता है। इसमें ये तीनों रूल्स हैं, एक, ये दो और ये तीन, तीनों रूल्स अप्लाई होंगे। तो हमने यहाँ पर लिखना है किताबी, 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 क्यों, क्योंकि अलिफ लाम भी नहीं, तनवीन भी नहीं और हालत जर में, ये जेर हालत जर की अलामत है, बता रही है कि ये हालत जर में है। तो वरकू किताबी। फिर अब यहाँ पर ज़ैद ले आए, यानी ज़ैद को उठाकर यहाँ पर रखें क्योंकि अरबी में मुज़ाफ इलैहि बाद में आता है। तो हम ज़ैद को सिर्फ हालत जर में रखेंगे। उस पर हम अलिफ लाम भी दे सकते हैं, तनवीन भी दे सकते हैं। जैसे कि ज़ैद खुद मारफा है, इसलिए हम उसे अलिफ लाम नहीं देंगे, बाकी तनवीन देंगे और हालत जर में रखेंगे, क्योंकि तनवीन ना आना मुज़ाफ का कायदा है और ये मुज़ाफ इलैहि है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज़ईदिन, ज़ईदिन, वरकू किताबी ज़ईदिन। इसका तर्जमा हमने उल्टा करना है, यानी यहाँ से शुरू करना है, ज़ैद की किताब का वरक। सही है, तर्जमा कैसे करना है, ज़ैद की किताब का वरक, ज़ैद की किताब का वरक। हमने यहाँ पर इस तरह लिखा, उर्दू में ये इस तरह लिखा जाता है, ज़ैद की किताब का वरक, लेकिन अरबी ज़बान का लिखने का एक अपना अंदाज होता है, अपना एक तरीका। हर ज़बान के अल्फाज की जो जोड़ जक होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो अलग होता है। सही है, तो उर्दू में ज़ैद पहले आया है, लेकिन अरबी में ज़ैद आखिर में आया है। लेकिन जब हम अरबी से उर्दू का तर्जमा करेंगे तो हम अपने उर्दू का ख्याल रखेंगे। हमने ऐसे नहीं करना वरक का किताब की ज़ैद, सही, वरक का किताब की ज़ैद, ये कोई फिर तर्जमा नहीं होगा, वरना हम अपनी ज़बान में गलतियां करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए पीछे से शुरू करना है, ज़ैद की किताब का वरक। अब हम कुछ 2 से 3 ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, बस आज का यही काम होगा हमारा। आपने बहुत ही गौर से और तवज्जो देनी है। अगर आप सामने होते तो मैं आपको खुद एग्जाम्पल्स देती और कहती कि मुझे करके दिखाएं, फिर मैं देखती कि आपको कितना समझ में आया। लेकिन खैर है, मुझे यकीन है कि अगर आप देख रहे हैं तो जाहिर है पूरी तवज्जो से ही देख रहे होंगे। अब हम 1-2 एग्जाम्पल्स और करते हैं। मिसाल है, कमरे की दीवार का रंग, ठीक है, कमरे की दीवार का रंग। पहले तीर चलाएं, रंग को इस तरफ कर दें, कमरे को इस तरफ कर दें और दीवार को इस तरफ बीच में ही रखें, जो बीच में है वो बीच में ही आएगा। अब रंग मुजाफ है और ये मुजाफ भी है प्लस मुजाफ और मुजाफ इलैहि भी है, दोनों है, और ये मुजाफ इलैहि है। सही है, मीम मैंने मुजाफ की लिखी है। तो ये रंग मुजाफ है, दीवार मुजाफ भी है, मुजाफ इलैहि भी है, और कमरा सिर्फ मुजाफ इलैहि है। तो रंग को अरबी में लऊन कहा जाता है, लऊन। अब हम अल-लऊन लिखेंगे या लऊन लिखेंगे, खाली जवाब दें। हाँ, हम खाली लऊनू लिखेंगे क्योंकि इस पर अलिफ लाम भी नहीं आएगी और तनवीन भी नहीं, क्योंकि ये मुजाफ है। फिर मुजाफ और मुजाफ इलैहि, यानी दीवार को कहा जाता है जिदार, जिदार कहा जाता है दीवार को। तो हम यहाँ पर भी अलिफ लाम नहीं लगाएंगे और ना ही इस पर एराब लगाएंगे, और इसको हालत जर में भी रखेंगे मुजाफ इलैहि की वजह से। तो ये हो जाएगा जिदारी, लऊनू जिदारी, लऊनू जिदारी। इसका हम तर्जमा नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि ये पूरा मुरक्कब भी नहीं बन रहा। ये पूरा उस सूरत में बनता जब इस पर तनवीन होती या अलिफ लाम होता, लेकिन इस पर दोनों की कवायद आए हैं, मुजाफ के भी मुजाफ इलैहि के भी, इसलिए हम आगे चलते हैं। कमरे को कहा जाता है गुरफा, गुरफा कमरे को कहा जाता है। इस पर हमने अलिफ लाम लगाना है, तो अल, क्योंकि मुजाफ इलैहि पर अलिफ लाम आप लगा सकते हैं सवाए मारफा अस्मा के। अल गुरफती, ये मुजाफ इलैहि है और मुजाफ इलैहि हमेशा हालत जर में होता है। लऊनु जिदारिल गुरफती, तर्जमा फिर आपने उल्टी साइड से करना है, कमरे की
दीवार का रंग, कमरे की दीवार का रंग, लौनु जिदारिल गुरफती, कमरे की दीवार का रंग। एक और मिसाल, आदम के बेटे के दोनों कदम, ये थोड़ा मजीद पेचीदा लग रहा है लेकिन ये आसान है। दोनों कदम को हम सबसे पहले मुजाफ की जगह पर रखेंगे, ठीक है, फिर आदम को हमने मुजाफ इलैह की जगह पर रखना है, फिर बेटे को हमने बीच में रखना है क्योंकि ये बीच में है। बाकी के ये जो 2 बार के आया है इसकी कोई अरबी नहीं है तो इसको आप क्रॉस लगा सकती हैं। हम सबसे पहले दोनों कदम का तर्जमा करेंगे। दोनों कदम, पहले एक कदम देख लें, एक कदम को कहा जाता है कदम, कदम मुन यानी कि एक कदम, ठीक है। अब 2 कदम के लिए क्या बनेगा, कदमानी, आनी साउंड मुसन्ना बनाने का कायदा, अलिफ नून आखिर में लगा दे। कदमुन से कदमानी, दोबारा कदमुन से कदमानी। अगर यहाँ पर कदमन होता यानी इस पर 2 जबर होती, 2 पेश नहीं यानी हालत नसब में होता तो ये हो जाता कदमैनी, कदमैनी, लेकिन ये यहाँ पर हम हालत रफा में रख रहे हैं तो कदमुन से मुसन्ना बनेगा कदमानी, कदमुन यानी एक कदम, कदमानी दोनों कदम, सही है। 2 के लिए हम कोई अलग लफ्ज नहीं लाएंगे, ये आपको पता है कि हमने सिर्फ मुसन्ना का इस्तेमाल करना है। अब कदमानी, इस पर रूल्स अप्लाई करें। सबसे पहले इस पर अलिफ नाम नहीं आएगा, इस पर पहले से अलिफ नाम नहीं है तो इसलिए हम एक रूल तो हो गया। फिर इसका एराब हल्का होगा। अब देखें, कदमुन का एराब हल्का करने के लिए हमने यहाँ पर एक पेश को हटा दिया, इसका एराब हल्का हो गया। इसका एराब हल्का करने के लिए हमें ये नून गिरा देना है, नून गिरा देना है। अब ये बन गया कदमा, क्या बन गया, कदमा। तो हम यहाँ पर दोनों कदम की अरबी लिखेंगे कदमा। असल में ये कदमानी था लेकिन मुजाफ होने की वजह से इसका नून गिर गया, ठीक है, कदमा। अब बेटे को अरबी में कहा जाता है इब्न, इब्न यानी कि बेटा। अब इब्न को हमने अल इब्न नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि ये मुजाफ है, अलिफ नाम नहीं लेना, और अल इब्नुन भी नहीं लिखना, तनवीन भी नहीं आएगी क्योंकि मुजाफ पर तनवीन भी नहीं आती, और हमने इसको हालत रफा में नहीं लिखना, हालत जर में लिखना है। क्यों, क्योंकि ये मुजाफ इलैह भी है, आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। तो कदमा इब्नी, फिर आदम को हमने आदमी या आदमू या आदम कैसे लिखना है, यानी ये मुजाफ इलैह है और मुजाफ इलैह आपको पता है हालत जर में होता है, तो आदमू, आदम या आदमी, कैसे इसकी हालत जर आएगी। और इसको मैं तनवीन क्यों नहीं दे रही, सोचे ये पीछे के ही कवायद हैं जो अब वापस आ रहे हैं। मैंने शायद आपको पहले भी बार बार कहा था कि अगर आपको पीछे की क्लासेस पूरी जहन में नहीं होंगी तो आगे की क्लासेस आपको मुश्किल लगेंगी, जो कि असल में मुश्किल नहीं है, बस लापरवाही की वजह से मुश्किल लग रही है। तो दोबारा सुने, आदम गैर मुनसरिफ इस्म है और गैर मुनसरिफ इस्म पर तनवीन नहीं आती और ये हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करता, इसलिए हम इसकी जो जर है वो जबर से देंगे। आदम, ये हालत नसब में भी ऐसे ही लिखा जाता है, हालत जर में भी ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये हालत जर में है। क्यों, क्योंकि आदम यहाँ पर मुजाफ इलैह है और आपको पता है मुजाफ इलैह हालत जर में होता है। तो कदम मबनी आदम, आदम के बेटे के दोनों कदम, ठीक है, आदम के बेटे के, यहाँ पर ये दोनों कदम के लिए आया है तो दोनों कदम, आदम के बेटे के दोनों कदम। अब यहाँ पर एक और चीज, ये जो इब्न है ना, इसका ये हमजा हमजतुल वस्ल है, यानी कि ये अगर पीछे से मिलाकर पढ़ा जाए तो ये हमजा पढ़ने में नहीं आता, मीम की जबर के साथ आप बा पढ़ सकते हैं। कदमबनी आदम, आदम के बेटे के दोनों कदम। ये हदीस में आते हैं कि आदम के बेटे के दोनों कदम तब तक नहीं हिलेंगे कयामत के दिन जब तक उससे 5 सवालात न किए जाएं। अब आप वो खुद ढूंढिएगा कि कौन से 5 सवालात हैं जो मुझसे होने हैं, मुझसे भी होने हैं, आपसे भी होने हैं। तो क्या हम उन 5 सवालात के जवाब देने के लिए अल्लाह ताला के पास जाने के लिए तैयार हैं या हम उनकी तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पर तो हम एग्जाम्स की बहुत तैयारी कहते हैं ना, तो वहाँ के एग्जाम्स की तैयारी कितनी है, वो 5 सवालात पता भी है या नहीं पता है, तो एक तहकीक जरूर कीजिएगा। तो कदम मबनी आदम,
आदम के बेटे के दोनों कदम। अब मैं आपको 3 एग्जांपल्स दे रही हूँ, उसकी आपने खुद अरबी करनी है। कोशिश कीजिएगा कि पूरे रूल्स अपने जहन में रख कर आहिस्ता आहिस्ता ध्यान से करिएगा ज़रूर। पहला है आपके पास बदले के दिन का मालिक। ठीक है, बदले के दिन का मालिक, ये तो आपको सूरह फातिहा में मिल जाएगा, लेकिन ये आपको खुद से ट्रांसलेट करना है। फिर रसूल की बेटी का शोहर, रसूल की बेटी का शोहर, ये इसका भी आपने अरबी में करना है। एक आखिरी है अल्लाह के घर की बरकत, अल्लाह के घर की बरकत, बदले के दिन का मालिक, रसूल की बेटी का शोहर, ये तीनों आपने खुद ट्रांसलेट करने हैं। ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। कल हम इंशाल्लाह एक और कदम आगे बढ़ाएंगे, यानी हम मुरक्कब इजाफी को मुब्तदा या फिर खबर की जगह पर रख कर जुमले बनाएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।